Good morning, students and my dear friends. Welcome to Easy Teach Academy. Now we are starting the next unit, that is determination of income and employment. And in that we are covering the 3 chapters, and the first chapter is related to some basic concepts of aggregate demand and aggregate supply, and consumption, savings, derivation of consumption curve. In today's video we are focusing on the basic concept, that is aggregate demand, its component, aggregate demand schedule and aggregate demand curve. Let's start with the meaning of aggregate demand. What is aggregate demand? It refers to the desired or the planned expenditure on the purchase of domestically produced goods and services during an accounting year. एक साल के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है टू परचेज द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सभी कमोडिटी की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑल द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. द इम्पॉर्टेंट three things about this definition is that it's a planned expenditure. ये planned expenditure है जो खर्च करना प्लान किया गया है. Second, it is planned on the purchase of domestically produced goods and services, जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में बनाए गए हैं, कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी परचेज पे. एंड द थर्ड थिंग इज द टाइम लिमिट, एंड द टाइम लिमिट इज विद इन अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. So that is aggregate demand. It is the planned expenditure on purchase of domestically produced goods and services during a period of an accounting year. That is aggregate demand. In microeconomics we deal we study about one commodity at a time, but in the macroeconomics we study all the goods and services. Now comes the components of aggregate demand. तो components को पढ़ने से पहले हम जरा रिवाइज करते हैं. जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो हमने उसमें 4 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था. अगर आप रिमाइंड करें तो 2 सेक्टर्स मॉडल में हमने 2 सेक्टर्स लिए थे, दैट इज प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. 3 सेक्टर में हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. तो एग्रीगेट डिमांड भी बेसिकली दीज आर द गुड्स डिमांडेड बाय दीज सेक्टर्स ओनली. तो जब हम एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, that is done by the household sector. Second comes the private final investment expenditure, that is done by the producer sector. Then comes the third, government expenditure, as the name is suggesting, it is done by the government sector. And the next come net expenditure, that is it is related to the rest of the world sector. 4 sectors and the 4 components of aggregate demand. The first is private final consumption, then comes private final investment, then comes government expenditure, then comes the net export. एग्रीगेट जैसी आप भी दिख रही है, इसमें सम M, and this is related to the economy. C, consumption, final consumption, final investment, and X aggregate will it is C plus M. Let us discuss these in detail. With final, it is the final services, यानी ये सेक्टर ने किया है. खरीदने
फाइनल कंज्यूमर सर्विसेज, जिसमें फैमिलीज आ जाते हैं कि कार खरीदनी है, खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, या कर रहा है कि एक साल सर्विसेज पे, एंड दिस नाउ फैक्टर इट डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करेगा? क्वाइट ऑब्वियसली उसके इनकम पे। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर क्या करेंगे? सर्विसेज खरीदने लगेंगे, और अगर उनकी इनकम कम होगी तो वो क्या करेंगे? and final consumption expenditure. Private final investment expenditure of the sector. ये खर्चा प्लान कर रहा है, सेक्टर कर रहा है, that is business. ये किस करेंगे? ऑफ कैपिटल गुड एंड इन्वेंट्री। एक बिजनेसमैन को एक क्या गुड्स चाहिए? उन्हें कैपिटल गुड्स चाहिए, उन्हें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, वर्क इन प्रोग्रेस मेंटेन करना है। एंड एक्सपेंडिचर प्राइवेट बिजनेसमैन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्री एन अकाउंटिंग ईयर। तो यानी दो तरह की इन्वेस्टमेंट इन्होंने करनी है प्रोड्यूसर सेक्टर ने, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी किसने किया गया है ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इट इज इंडिकेटेड सिंबल आई। इससे इंडिकेट करते हैं? सिंबल आई से। अब जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उसका जो ये एक्सपेंडिचर है किस करेगा? इट विल डिपेंड ऑन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो लोन लेके बिजनेस करते हैं, तो वो क्या कंसिडर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, उन्हें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करना होता है। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, यानी प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो क्योंकि अब सस्ते हो गए हैं लोन लेने, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में और इन्वेंट्री में। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं बाय द प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि प्राइवेट बिजनेसमैन जो ये खर्चा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। So this is the second component. Now the third component, that is government final expenditure. As we know that government plays a role. Government दो role करती है. It acts as a consumer also and it acts as a producer also. As a consumer, it purchases consumer items, for example, uniform for the defense, food items for the defense, stationery for the administration departments, है ना? अगर हम कोर्ट्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे स्टेशनरी लगती है। और इट मीन्स कि कंज्यूमर एक्ट एज अ गवर्नमेंट एक्ट एज अ कंज्यूमर ऑल्सो as consumer goods and services. So on the other hand, government act as a producer also. Government नहीं करती है। देखिए government है ना जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो एज अ प्रोड्यूसर इट हैज टू इन्वेस्ट assets and inventory also. So what is government final expenditure? It refers to the expenditure spent by the government on the final consumer goods as well as use of goods during a period of an accounting year. इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? किस अल्फाबेट से? It is indicated by the alphabet and it does not depend on level of income. It does not depend upon the market rate of interest. That's why it is called autonomous investment. It is level of income. ये level of income पे depend नहीं करता है and it is guided by the
सोशल वेलफेयर, ये किस मोटिव से गाइडेड है? इट इज गाइडेड बाय द सोशल वेलफेयर, and that's why it is not depending on level of income. So that is the third component, government final expenditure. Now the fourth, that is net export. What is net export? It's a difference between export and import. Export और import का जो difference होता है, that is called net export. And what is export? It is the demand of domestically produced goods and services in foreign market. यानी वो goods जो बनाए गए हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन जिनकी डिमांड कहाँ है? फॉरेन मार्केट में. And what are import? It is the demand of foreign goods in domestic market. यानी ये goods बाहर बनाए गए हैं लेकिन इनकी डिमांड हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है. Why we are subtracting import? Because these are not manufactured within the domestic territory of the our country. इसलिए क्योंकि इनका प्रोडक्शन हमारी टेरिटरी में नहीं है, इसलिए हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे. इसलिए हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से हम को माइनस कर देते हैं. So these are the four components of aggregate demand. That is C plus I plus G plus X minus M. अब कुछ खास बातें हम करते हैं. एग्रीगेट डिमांड को हम दो रेफरेंस में स्टडी कर सकते हैं. वी कैन स्टडी एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू जनरल प्राइस लेवल. जैसे डिमांड में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस. तो यानी एग्रीगेट डिमांड को भी हम वी कैन स्टडी रिस्पेक्ट टू द प्राइस लेवल, एंड वी कैन स्टडी द एग्रीगेट डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम लेवल. तो हमारा जो सिलेबस है +2 लेवल पे वी आर स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड टू इनकम लेवल. क्योंकि डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हम एट ए टाइम दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइस लेवल एंड इनकम लेवल. तो जब हम अपना +2 का सिलेबस कर रहे हैं तो हमारे +2 सिलेबस में वी आर गोइंग टू स्टडी एग्रीगेट डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम लेवल. प्राइस लेवल को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट कम सबसे इंपॉर्टेंट है. अब अभी तो हमने एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, दैट इज C plus I plus G plus X minus M. लेकिन आगे फर्दर जब हम चलेंगे देन वी विल टेक ओनली 2 कंपोनेंट. हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, दैट इज C plus I. व्हाट वी विल स्टडी? C plus I. और उसमें भी हमने I को कांस्टेंट मान लिया है. उसके अजम्पशन लिया है, I को कांस्टेंट मान लिया. इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज द थ्योरी इज गिवन बाय द लॉर्ड केन्स और उनकी कुछ अजम्पशंस हैं. पहले वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन 2 सेक्टर मॉडल. तो क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है तो C plus I ही लेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड द सेकेंड वी आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट एज कांस्टेंट. इसको हम स्टडी करने के लिए देयर कम्स द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. देयर कम्स द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. तो शेड्यूल जो वर्ड होता है वो किसको इंडिकेट करता है? टेबल को, यानी रोज एंड कॉलम्स. सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल? इट्स अ टेबल विच शोज द कंबाइंड बिहेवियर of consumption and investment corresponding to different level of income. तो हमने पढ़ा था कि हम स्टडी करेंगे इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. हम AD को स्टडी करेंगे इन रिलेशन टू इनकम. तो जब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर शो करता है टेबल, वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जो कि आप एक स्लाइड में भी देख सकते हैं. इट्स अ रोज एंड कॉलम. ये शेड्यूल है क्योंकि रोज एंड कॉलम्स है, टेबल है, और उसमें इनकम लेवल है starting from 0, then 20 crore, then 40 crore, 60 crore. It is increasing by 20 crore. There comes the consumption. Consumption देखिए, initially it is 30, then come 40, 50, 60, 70, 80. It is increasing by 10 crore. Important point is that at 0 level of income consumption is not 0. कि 0 level of income पे consumption 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारी इनकम चाहे 0 ही क्यों ना हो जाए लेकिन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को हमें फुलफिल करना होता है. ये और फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे हम इसके बारे में. एंड देन कम्स द आई को हमने 20 करोड़ लिया और वो कांस्टेंट है क्योंकि अजम्पशन है. आई को हमने कांस्टेंट लिया, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट वी कैन स्टडी मोर अबाउट कंजप्शन
कि हम कंजप्शन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, इसलिए आई को हमने कांस्टेंट लिया है. नाउ कम्स एडी. व्हाट इज एडी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस, इट्स अ समेशन ऑफ सी प्लस आई. तो जब सी प्लस आई को ऐड करते हैं तो एडी का बिहेवियर, यानी एडी के बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कंजप्शन का है, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है. तो जो भी चेंजेस एडी में आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वजह से आ रहे हैं. तो अगर हम इंपॉर्टेंट बात नोटिस करें, ऑब्जर्वेशन क्या है? एज द इनकम इज इंक्रीजिंग, consumption is also increasing, and similarly AD is also increasing. So it means there is a positive relationship between income and consumption, income and AD. और इसी को हम एक डायग्राम के थ्रू भी स्टडी करते हैं. आप देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम शो किया है, वाई एक्सिस पे हमने AD, CN, I को शो किया है, एंड देयर आर 3 कर्व्स, 3 लाइंस शो हो रही हैं. एंड I रिजेंबल्स द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए इट इज इंडिकेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. देयर कम्स द C अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, स्टार्टिंग फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और अपवर्ड स्लोपिंग है, जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगी. और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सी कभी भी जीरो नहीं होगा. एंड देन कम्स द अपर मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट पे एडी कर्व है, जो कि समेशन है सी प्लस आई का. क्योंकि ये समेशन है तो इसकी वैल्यूज डेफिनेटली सी और आई से बड़ी होंगी, इसलिए ये सबसे टॉप पे लाई कर रहा है. एंड इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? कंजप्शन का बढ़ रहा है, क्योंकि आई कांस्टेंट है. सो इट इज ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. It is also indicating the positive relation between income, AD and income, and it is also starting from above the point of origin. क्योंकि C और I जीरो नहीं है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, तो AD भी कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम Y एक्सिस. इसका इंटरसेप्शन कहाँ से होगा? Y एक्सिस से होगा. So AD curve is upward sloping from left to right. And second point, its interception is from y axis. ये point of origin से start नहीं होगा. तो आज का टॉपिक, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. जो आज हमने AD, मीनिंग ऑफ AD, components of AD, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने स्टडी किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Have a nice day. Thank you.